सनम रे फिल्म का सबसे बेस्ट पार्ट आई थिंक सो मेरे ख्याल से ये भी एग्री करेंगे कि वो स्टोरी है, बिकॉज पूरी टीम जो साथ में आई है वो स्टोरी की वजह से साथ में आई है। सबको पहले स्टोरी पसंद आई और क्योंकि जेन्युइनली बिफोर वी हर्ड द स्टोरी हमें पता भी नहीं था कि दिव्या डायरेक्ट करने वाली है, तो उसके बाद दिव्या ने खुद नरेट करी और स्टोरी बहुत ही खूबसूरत थी। तो दैट इज आई थिंक द एंटायर टीम केम ऑन बोर्ड। आई थिंक इस मूवी की खासियत भी कहानी है। आई लव माई कैरेक्टर एंड काफ़ी टाइम के बाद सिर्फ एक नॉट जस्ट एज एन एक्टर बट आई थिंक एज एन ऑडियंस ऑल्सो यूल गेट टू सी समथिंग वेरी डिफरेंट। आमतौर पर आजकल वी सी मोर ऑफ रोम कॉम्स एंड यू नो दीज romantic comedies and all. I think this is a pure out and out love story and I wanted to always act in a love story. I mean, even if I think I was not an actor, I still wanted to do a love story. I don't know how but so when I got offered this one. देखो जो ये फिल्म है इसमें बेसिकली हम अलग अलग एजेस में प्यार करते हैं, तो it basically travels from like childhood love to teenage love to so our characters are 6 years old as well and our characters are 16-year-old as well, then they are maybe 60 years old as well. So that's how the film progresses to and fro. It's a very interesting screenplay. So obviously 16 साल तक तो हम फिर भी मैनेज कर सकते हैं, 6 साल का हम नहीं कर सकते हैं. So we have these two beautiful kids in the film. Yeah. One is Neil and the other one is Delsa. he's playing my younger part and Delsa. Delsa is playing her younger part and both of them are really adorable and very very sweet and very notorious. So for them it is difficult to pick up our nuances or to train them that much कि वो हमारा कुछ ले पाएँ कि हम किस तरह कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं. So we have to play according to what they have been doing in the film. So they shot with them first and whatever look they had in the film, obviously to show similarity between the characters, she had those fringes on her forehead for the teenage thing and I had the similar hair that the kid has. मुझे बहुत मज़ा आता है अगर ऐसा कोई रोल मिले जिसमें कुछ लुक के साथ भी आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करने को मिले, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट एक्साइटिंग फॉर यू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मूवी एंड इट्स वेरी एक्साइटिंग फॉर द ऑडियंस ऑल्सो टू सी समथिंग डिफरेंट एंड वो लोगों को बहुत अच्छा लगा. The most challenging, Sanam Re, yeah. Was this the snow was still here? Yeah. Sari and I think even the school dress. Yeah, I was covered in that one, so I was a little fine because I was wearing warm clothes. And जब वहाँ पहुँचे तो it was snowing there. And the day we left, it was sunny. Yeah, and we're not carrying any warm clothes, nothing. वहाँ जाके कपड़े खरीदे हैं. And he had those bare body shots, horse riding करते वक्त and all. We had some other shots. मतलब I can't forget that cold. Yeah, but everything looks worth it because by the end of it, the result has to come out nice. And like people keep talking about chemistry, this. ये सब नहीं हो तो chemistry भी नहीं होगी. Chemistry is more about what all is getting it together. What all adds to it. I think whether that whole look of the frame, you know, that plays a huge role. Yeah. देखो मैं आपको भी पकड़ूंगा, यहाँ से पंखा चलेगा, आपके बाल उड़ेंगे, मैं आपको कमर से पकड़ूंगा, फिर ऊपर से बर्फ गिरेगी, पीछे से हवाएं चलेंगी, आपके बाल ऐसे से उड़ रहे होंगे, तो हमारी केमिस्ट्री कितनी प्यारी लगेगी. बेसिकली कैमरे के पीछे जितने लोग काम कर रहे होते हैं उनकी देखो केमिस्ट्री कितनी अच्छी होगी, तो उसकी वजह से इट लुक्स इवन बेटर ऑन स्क्रीन. ऑल्सो गजब का दिन क्योंकि हमें जो साइकिल्स दी थी वो साइकिल में ब्रेक नहीं थी. और एक शॉट में तो मैं चली भी गई थी. ये तो चल दी थी, मतलब कोई रोकने नहीं आया. जस्ट कैसे आनंद मेरा तो ब्रेक. उस गाने में एक्चुअली हमने एक लोकेशन पे शूट भी किया है जो स्नेक्स का हैबिटेट था, तो वहाँ पे अगर हम इस तरह बैठे हैं बात भी कर रहे हैं तो यहाँ से 4-5 स्नेक्स ऐसे निकल जाते थे. और वहाँ का रूल है कि अगर आपने सांप को टच भी कर दिया आप जेल में चलेंगे. they have bigger rights than what we have because we are entering their habitat. So that location was very exciting. We all love I think the title track Sanam Re. There's another one by Palak Shabir. Yes. क्या तुझे अब ये दिल बताए. क्या तुझे अब ये दिल बताए. बहुत अच्छा गाती है. पूछो. I can't sing this one. This is Palak 3, 2, 1 Shabir. को. क्या तुझे अब ये दिल बताए, तुझ पे कितना मुझे प्यार आए. इस साल अपना वैलेंटाइन बहुत स्पेशल बनाई है सनम रे के साथ, हमारे साथ. ये एक बहुत ही स्पेशल फिल्म है क्योंकि प्यार करने वालों के लिए फिल्म है, प्यार से बनाई गई है और प्यार के बारे में है. और आपने ऑलरेडी बहुत सारा प्यार दे दिया है गाने को, ट्रेलर को, तो पिक्चर को भी बहुत सारा प्यार दीजिए एंड आई एम श्योर देंगे प्यार. तो आप प्लीज़ आके देखिए प्यारी फिल्म, प्यार भरी फिल्म. 12th February को. This is a small Valentine's gift from our side and we are very excited क्योंकि after actually बहुत समय बाद एक out and out romantic film is coming out on Valentine's Day. So
me myself, even if I was not a part of this, I would be very excited to watch it.